Good morning, my dear students. Class 8, chapter number 6. Today we are going to begin chapter number 6, and it is related to the last previous chapters, means number 4 and chapter number 5. In this very chapter, the name of this chapter is Colonialism and the City and the Imperial Capital. In this very lesson, we will study about cities under colonial rule. Next, the old Delhi and the new Delhi. What was the area of old Delhi and how the new Delhi constituted or framed or developed. Next, New Delhi becomes the imperial capital. Next, we will discuss other topics like planning for the new capital. Delhi during partition. Partition means India-Pakistan. The decline of Havelis. And the last one, the municipal plans of New Delhi. These things we will be going to discuss in this chapter, in this lesson. Before that, we have to understand that why the East India Company or the colonial rules began in India. What was the reason? In short, we can say that for the development of their trade, they had been to India, means the English people, the British, or the East India Company came here to develop their trade. So here we have to keep in our mind always that India was a boon for them so far as the trade is concerned, and so they started to develop the cities. So first of all, in this very lesson, the first topic, and that is the cities under colonial rule. How they developed their cities to develop their colonial rule. So how they developed? So it is the main thing we have to know. During the late 18th century, Calcutta, Bombay and Madras gained prominence as presidency cities, while they became the centers of British power in different regions of India. A vast host of smaller cities started to decline. This was mainly due to the decline in the demand for what they produced. Old trading centers and ports could not survive when trade moved to new centers. We know very well. One thing is very important to know here or to understand here, that at that time trade was developed and trade was going on only through the waterways. Means the waterways was the only way for the international trade. Before that, India is actually uh, has been in trade since very long time in the international trade, and the sea route is very developed internationally. So UK, United Kingdom or England, it was also very developed in the waterways. Ships were developed, so they started their trade by sea or waterways. So here in India, when they came here for the first time, they made
three cities as presidencies: Bengal, Calcutta, and Madras. Calcutta, Madras, and Bombay. Sorry. So only to develop the trade, because all these cities, three cities, were situated on the bank of the sea, and the shipping activities or the waterways activities are developed. Therefore, they started to improve these cities as the trade centers. So, likewise, Delhi was actually Delhi was a political center, administrative center before that, during the Mughal period also. Agra was also for the time being, but Delhi was the main center. So here now we are discussing the old Delhi and the new Delhi. Delhi has been a capital city for more than 1,000 years, as I told you. More than 1,000 साल तक दिल्ली जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल रहा और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रहा मुख्तलिफ डायनेस्टीज का। उसमें दिल्ली सल्तनत भी है, उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टीज भी है, उसके बाद उससे पहले हम जाएंगे तो हिंदू राजवंश भी हैं। तो इन लोगों के समय में ये काफ़ी हद तक दिल्ली जो है वो सेंटर रहा। तो दिल्ली हैज़ बीन ए कैपिटल सिटी फॉर मोर देन 1,000 of years with some gaps. बीच बीच में थोड़े गैप हुए हैं। As many as 14 capital cities were constructed in the small area of around 155 square kilometers. Or the left bank of the river Yamuna. The most important of these cities were the capital cities built between the 12th and 17th centuries, means 500 साल तक। हमने बताया कि thousands of years, but 500 years तक तो दिल्ली जो है कैपिटल सिटी रहा ही है। The greatest capital built by Shah Jahan, called Shahjahanabad, its construction started in 1639. This comprised a fort palace complex. The fort was made of red sandstone and was called Lal Qila or the Red Fort. इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि दिल्ली जो ओल्ड दिल्ली में है, ये रेड फोर्ट हमारा ओल्ड दिल्ली में है और न्यू दिल्ली बाद में बनाया गया। जब हमारे ये लोग स्ट्रॉन्ग होने लगे तो वो न्यू दिल्ली और नियर अबाउट बहादुर शाह जफर के टाइम में, यानी 1857 के बाद, 1857 म्यूटिनी के बाद ये यहाँ पर इसको डेवलप किया गया, इसको न्यू दिल्ली को डेवलप किया गया। और इसके डेवलप करने में देखिए काफ़ी रहा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहा। तो इस तरह से 1639 में शाहजहानाबाद का क्रिएशन स्टार्ट हुआ, यहाँ लाल किला बनाया गया और लाल किला के बाद फिर द वॉल्ड सिटी वाज द वेस्ट ऑफ द, इसको वॉल्ड सिटी कहा जाने लगा इसलिए कि ये दीवारों से घिरे हुए शहर थे। 14 गेट्स डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक द मेन मार्केट रहने, ये चांदनी चौक और ये रेड फोर्ट, ये सब सारे के सारे एरियाज जो हैं जब ओल्ड दिल्ली में आते, दीज ऑल कम्स अंडर द ओल्ड दिल्ली। एंड उसके बाद ईदगाह खानका, द सिटी boasted of open squares, winding lanes and sparkling water channels. In fact, the beauty of the city was captured by the poet Mir Taqi Mir, who said the streets of Delhi are not more streets, they are like the album of a painter. अब यहाँ तक हम देखते हैं कि ये ओल्ड दिल्ली में लाल किला जिसको कि इम्पेरर शाहजहां ने स्टार्ट किया और 1639 में बनाया गया। उसके बाद फिर वॉल्ड सिटी बना, उसके बाद फिर इसी तरह से चांदनी चौक का एरिया बना, फिर कुछ ईदगाहें, कुछ खानका वगैरह बनाए गए। तो ये सारे के सारे ओल्ड दिल्ली में आ गए थे। तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि न्यू दिल्ली बिकम्स द इम्पोर्टेंट इंपीरियल कैपिटल। ओल्ड दिल्ली के बाद अब इन लोगों ने चाहा, ब्रिटिश ने चाहा
कि नए बड़े पैमाने पर ओल्ड दिल्ली जो है, ओल्ड दिल्ली को भी, न्यू दिल्ली को भी अब बनाया जाए। तो 1857 में जो मीटिंग हुआ, यानी जो बगावत जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद 90 ईयर्स तक अंग्रेज काफ़ी स्ट्रांग रहे यहाँ पर इंडिया में। तो इसके बाद इन लोगों ने न्यू दिल्ली को इम्पीरियल। During the 1857 revolt, the rebels gathered in the city and persuaded the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to become their leader. After the revolt failed and the British captured the city, they plundered the old city and killed many innocent people. Thousands of people fled the city and took shelter in small communities outside the city. Bahadur Shah Zafar was exiled to Burma. His court was dismantled, several of his palaces were razed and barracks were built at the Red Fort. कल मैं बता रहा था कि how Bahadur Shah Zafar became the last Mughal emperor and how the Lord Canning accepted him as the last emperor of Mughal Empire. So Bahadur Shah Zafar के टाइम में 1857 मीटिंग के बाद न्यू दिल्ली का फिर स्टार्ट हुआ बनाने का, और उसको इंपीरियल कैपिटल बनाने का प्रोग्राम ये ब्रिटिश इंडिया का शुरू हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का। द ब्रिटिश वांटेड टू इरेज traces of the Mughal past. They cleared the area around the forts. Many mosques were destroyed or put to other uses. मसाजिद जो बनाई थी हमारे मुगल इम्पेरर्स ने, इनको भी तबाह और बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। Destroyed or put to other uses. The Zinatul Masjid was converted into a bakery. No worship was allowed in the Jama Masjid for 5 years. The canals were filled up and 1/3 of the city was demolished. इसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया, इसको सिटी को, फिर उसी को एरिया को जो नई चीज बनाई गई, दैट इज कॉल्ड द न्यू दिल्ली। द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद were broken in 1870 to make a way for the railway. The British started living in the civil lines area to the north, away from the Indians in the old city. The Delhi College, which has been established in 1792 and was responsible for great intellectual flowering in the sciences and the humanities in Urdu language, was first turned into a school and later shut down in 1877. यानी जितने भी काम, जितना भी कंस्ट्रक्टिव वर्क्स किए थे मुगल इम्पेरर्स ने, उन सबको बंद कर दिया गया और नए सिरे से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और वहाँ पे दिल्ली के ये लोग इंडियंस जो है वो वहाँ पे रहने लगे ओल्ड दिल्ली में, और यहाँ पर न्यू एरियाज जो जहाँ डेवलप किया डिस्ट्रॉयड करने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश रहने लगे और उनके लोग, उनकी कॉलोनीज बनने लगी। अब प्लानिंग न्यू कैपिटल का कैसे हुआ? 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, हम सब जानते हैं, जिसमें हम लोग हार गए थे। द इंग्लिश पीपुल वन द गेम, वो जीत गए थे, हम लोग हार गए थे। इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर भी किया है, और इसके पहले वाले भी लेसन में हम लोगों ने कर लिया है। When the British realized the symbolic importance of Delhi, so they soon started holding grand events to showcase imperial might in Delhi. In 1877, Viceroy Lytton organized a grand darbar to acknowledge Queen Victoria. अब ये क्वीन विक्टोरिया जो महारानी थी वहाँ की, उनके आने के मौका पर यहाँ पर दरबार लगाया गया। और उसी टाइम में इन 1911 a grand coronation darbar of King George V, और यहाँ पर King George V at that time he was the king there in England, and so darbar was held and the queen had been to India, and after that a planning, new capital की planning वहाँ पे शुरू हुई, held in Delhi. The decision to make Delhi the capital of India was made at this darbar. New Delhi was designed by two architects, Edward Lutyens and Herbert Baker. ये हर्बर्ट बेकर और लुटियंस करके दो हमारे इनके अंग्रेजों के बहुत बड़े आर्किटेक्ट्स थे, जिन्होंने न्यू दिल्ली का मॉडल तैयार किया।
और न्यू कैपिटल का कहाँ पर क्या बनेगा नहीं बनेगा ये सब देखा। ये 26 स्क्वायर किलोमीटर 26 यानी किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर में ये कंस्ट्रक्शन का डाला गया। और जहाँ पर वायसरायज का जो पैलेस है, जिसे अभी राष्ट्रपति भवन हम कहते हैं, टॉप रायसीना हिल पर इसे बनाया गया। 3.2 किलोमीटर लॉन्ग किंग्स वे राजपथ जिसको हम कहते हैं, 3 किलोमीटर से ज़्यादा है थोड़ा वो, राजपथ की बुनियाद डाली गई। और स्टार्टेड फ्रॉम द पैलेस एंड एंडेड वेयर द करेंट इंडिया गेट इज, यानी राष्ट्रपति भवन वायसराय से लेते हुए और राजपथ के बीच में वो इंडिया, और सामने इंडिया गेट पर टर्मिनेट करता था, ये 3 किलोमीटर का। द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स वेयर ऑन द ईदर साइड ऑफ द एवेन्यू, यानी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ, आज भी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, और यहीं से पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम होता है, और ये लोग यहाँ से काम करते हैं। और ये जाना जाता है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में ही सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं यहीं पर हैं। ये भी उसी टाइम में बनाया गया, और इन सब की मैपिंग और इनका जो कंस्ट्रक्शन और इनको जो प्लानिंग किया, यही लुटियंस ने और बेकर ने, ये 2 आर्किटेक्ट थे हमारे। उसके बाद ब्रिटिश वांटेड टू, अब ये न्यू सिटी तो बन गया, एक ओल्ड सिटी हमारा दिल्ली का रहा, जो ओल्ड सिटी में इंडियन जाके रहने लगे, और न्यू सिटी में द इंग्लिश पीपल स्टार्टेड टू लिव देयर, और वहाँ पर इनकी ऑफिस वगैरह होने लगी। The British wanted to present their new capital city as a modern contrast to शाहजहानाबाद। अब शाहजहानाबाद तो जैसा मैंने बताया कि न्यू दिल्ली में, ये ओल्ड दिल्ली में आता है, रेड फोर्ट वगैरह का एरिया हुआ, वर्ल्ड सिटी हुआ, ये सब ओल्ड दिल्ली में आता है। और ये जो अंग्रेजों ने बनाया, जो बेकर और लुटियंस, दो आर्किटेक्ट थे जिससे न्यू दिल्ली इन्होंने बनाया, और न्यू दिल्ली में को बनाने के दौरान जो 26 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में जिसकी प्लानिंग की गई, दोनों आर्किटेक्ट ने किया, और जिसमें वायसराय का जो बना, जो अभी राष्ट्रपति भवन कहलाता है, प्रेसिडेंट हाउस है, तो ये वायसराय का भी बना। और वायसराय का वो पैलेस था पहले, जिसमें सैकड़ों कमरे हैं और आज भी हैं, उसको किसी भी तरह से डिसमेंटल नहीं किया गया। और वहाँ से स्ट्रेट 3.2 किलोमीटर का एक जो है अशोक राजपथ है, राजपथ, और वो इंडिया गेट पर जाके टर्मिनेट करता है। ये सारा का सारा डिजाइनिंग जो है ये दोनों आर्किटेक्ट ने किया था, और इसी आर्किटेक्ट के बाद ये न्यू दिल्ली की प्लानिंग की गई। द रेड फोर्ट इज वन ऑफ द लेफ्ट थ्रू द सेंटर रन्स द मेन रोड ऑफ द चांदनी चौक। ये रेड फोर्ट, ये चांदनी चौक सब हमारे ओल्ड दिल्ली में है। नाउ दिल्ली ड्यूरिंग द पार्टीशन, अब दिल्ली की पार्टीशन की क्या है, 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, और ये पार्टीशन में दिल्ली की क्या पोजीशन थी, दिल्ली तो उजड़ गया बिल्कुल। In partition of India in 1947 resulted in migration, mass migration कहते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों का क्या कहते हैं माइग्रेशन को, यानी लोगों का यहाँ से ये शुरू हुआ, पलायन बोल के हिंदी में हिजरत बोलते हैं, मास हिजरत किया लोगों ने पाकिस्तान के लिए। एंड सडन स्वेलिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, और दिल्ली की पॉपुलेशन काफी कम हो गई। In the days after partition, hordes of the Muslims left Delhi for Pakistan, and a similar number of Sikhs and the Hindus from Pakistan streamed into Delhi. Sikh और हिंदू यहाँ पर पाकिस्तान से इंडिया में चले आए। Thousands of people were killed, homes looted and burned. Over 2/3 of Delhi Muslim migrated. 2/3 जो आबादी थी मुसलमानों की, दिल्ली से वो माइग्रेट कर करके वो चली गई पाकिस्तान में। Many Muslims abandoned homes and stayed at camps till they could leave for Pakistan. और इस तरह से पाकिस्तान का एक हुआ। Over 5 lakhs people were added to the population of Delhi. 5 लाख आ गए वहाँ से, हिंदू आए, सिख भी आए। Most of the people who came were from Punjab. They set up home whatever they could. Some got the opportunity to occupy houses that had been abandoned. जो ऐसे मकान पड़े हुए थे उनको किसी ने कैप्चर कर लिया। New colonies like लाजपत नगर एंड तिलक नगर came up, नए नए नाम से लाजपत नगर, तिलक नगर, ये सब कॉलोनी बनने लगी दिल्ली में। और फिर जॉब्स और हॉकर्स वगैरह आ गए, वेंडर्स आ गए, काम कारपेंटर आ गए, एनीथिंग एल्स दे कुड फाइंड
They were desperate to establish themselves in the, इस तरह का दिल्ली का मामला हुआ। दिल्ली उजड़ सा गया और टेंट में लोग रहने लगे और इस तरह से रिफ्यूजी कैंप में भी लोग रहने लगे और बाद में धीरे धीरे जहाँ जिनको जगह मिली वहाँ उसको कैप्चर कर लिया। इसमें बहुत सारे गुरुद्वारे, बहुत सारे मसाजिद, बहुत सारे मंदिर सब में लोग आकर के रहने लगे। अब ओल्ड दिल्ली में ओल्ड सिटी जो था ये हमारा, इनसाइड द ओल्ड सिटी, द चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर टाइम वर्सनड द सिचुएशन इन द वॉल सिटी। अब ये ओल्ड दिल्ली जो हमारा था, जहाँ पे लाल किला और ये चांदनी चौक, इसमें भी इसके भी हालात बद से बदतर होने लगे। द सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड वेल्स ब्रोक डाउन एंड द ड्रेनेज सिस्टम वाज डैमेज। द पॉपुलेशन grew and the old system could not supply enough water to the residents. At the end of 19th century, a new system of open drains was introduced, but this also was soon overwhelmed. The result was permanent stench from overflowing. यानी जो पहले के जो इंतजाम किए हुए थे, जो सिस्टम था, और जब ये आबादी बढ़ गई यहाँ पे ओल्ड दिल्ली में, तो डेफिनेटली वो सिस्टम फिर कारगर नहीं हुआ। इट वाज नॉट इनफ, जैसे ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम ये बढ़ गया यहाँ पर। अब हवेली का डिक्लाइन हुआ। हवेली जो बड़ी बड़ी, जो बंटवारा से पहले, पार्टीशन से पहले हवेली हुआ करती थी, ओल्ड दिल्ली में बड़ी बड़ी हवेली हुआ करती थी, जहाँ पे उनके मकान होते थे पैलेशियल, और फिर हवेली कहा जाता था उर्दू जुबान में इसे। द ओल्ड सिटी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ हवेलीज। इसको प्राइवेट मैंशन कहा जाता है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। वन विथ हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, वेयर द मुगल एरिस्टोक्रेसी लिव। A typical haveli housed many families. The entrance was through a beautiful gateway which led to an open courtyard with public rooms meant for visitors and business. These were used exclusively by the male members. इस तरह से हवेली के, तो हवेली की हालत भी काफी गिरावट आ गई इसमें एक पार्टीशन के बाद। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये हवेली की भी हालत और काफी गड़बड़ा गई। The Haveli, the colonial bungalow, was meant for a single family. It was a single story structure. इन सब के बाद अब ये गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब न्यू दिल्ली के लिए म्यूनिसिपल प्लान्स होना चाहिए। नगर निगम का जो होता है, जो सड़कों की के रख रखाव को देखे, उसकी साफ सफाई को देखे, स्ट्रीट लाइट को देखे, कैनाल्स, ये ड्रेनेज सिस्टम को देखे, शहर हमारा साफ हो। इसके लिए अब ये प्लानिंग करने लगे कि म्यूनिसिपल प्लान्स कैसे होगा न्यू दिल्ली का। ये यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने इस बात के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। यानी कि ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड द ब्रिटिश, इवन दो कंडीशंस रिमेन पुअर इन द वॉल्ड सिटी। वॉल्ड सिटी हमेशा जो आएगा किताबों में भी, तो इसका मतलब ये समझना है ओल्ड दिल्ली के सिमराज है वॉल्ड सिटी। लाल किला का एरिया, चांदनी चौक का एरिया, ये सब हमारा वॉल्ड सिटी था। तो जो बाद में जो नए जब सिटी हमारी बनने लगी, जो इम्पीरियल सिटी दिल्ली, जिसको पॉलिटिकल का भी ये मिला, तो ये 1911 में इसको फाइनल किया गया कि दिल्ली को बनाया जाएगा, और जहाँ वायसराय का भी पैलेस बना और सारी चीज़ें हुई जो मैंने बताया। तो पॉपुलेशन ग्रीव एट एन अलार्मिंग रेट। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया दिल्ली का आफ्टर पार्टीशन, और वॉल्ड सिटी में भी पॉपुलेशन बढ़ा। क्लार्क प्लान द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम इन 1888। अब यहाँ पे लाहौर गेट आज भी मौजूद है, और वो लाहौरी दरवाज़ा उसे हम बोलते हैं। वहाँ से लाहौर जाना बिल्कुल करीब है लाहौर वहाँ से। द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड क्लार्कगंज। द आइडिया वाज टू मूव रेसिडेंट्स away from Old Delhi to a new kind of market square around which shops could be built. Land was divided into regular areas and a grid pattern was followed.
This development remained incomplete and failed to decongest the old city in 1936. अब ये 1936 पे हम आ गए, जस्ट अब हमारा यानी इससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर हमारा CDM हुआ, सिविल ये डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ हमारा। इन सब के दौरान ये 1936 में दिल्ली डेवलपमेंट ट्रस्ट इसको बनाया गया, और दरियागंज साउथ वेयर इंडियंस यूज्ड टू लिव, द हाउसेज वेयर ग्रुप अराउंड पार्क्स एंड विदिन पार्क बनाए गए, हाउसेज को सिस्टमेटिक बनाया गया, और इस तरह से कुछ प्लानिंग की गई कि जिससे ड्रेनेज सिस्टम हमारा दिल्ली का अच्छा हो, मेंटेनेंस हमारा अच्छा हो, और उसके बाद में जो छोटे मोटे डेवलपमेंट है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, इस तरह की बातें होने लगी, और तब जाकर के 1936 में इसकी प्लानिंग की गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने इस पूरे के पूरे लेसन में क्या हम लोगों ने इसमें देखा। स्पेशली हमने पहले देखा कि बिफोर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दिल्ली बिफोर द पार्टीशन, और फिर आफ्टर द पार्टीशन देखा। उससे कबल हमको ड्यूरिंग तो लेट 18 सेंचुरी मतलब 1780 के बाद, 1700 के बाद कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास गेन प्रोमिनेंस, इनको अहमियत मिली, इम्पोर्टेंस मिला, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 3 सिटी को बनाया, ट्रेड सेंटर्स बनाया, और इसी की वजह से यहाँ पर इनको इम्पोर्टेंस मिला। उसके बाद क्योंकि ये सब जितने भी थे तीनों शहर, ये नदियों के किनारे थे, समुद्र के किनारे थे, और यहाँ से तिजारत और ट्रेड बड़ा ही डेवलप से हो रहा था, और ट्रेड के लिए आए थे, इसके लिए इसको उन्होंने डेवलप किया। उसके बाद में फिर मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम, ये इसको भी डेवलप किया गया, क्योंकि ये भी पानी के रास्ते में थे, और यहाँ से डेवलप था, वाटरवेज के जरिया व्यापार हो सकता था बड़े पैमाने पर, इसीलिए जो जो अपने फायदे की चीज़ थी इन्होंने वो सब काम किया। दिल्ली हैज बीन ए कैपिटल सिटी फॉर मोर देन 1000 years। दिल्ली के बारे में बात आती है तो नियर अबाउट 500 साल तक तो दिल्ली रहा ही, कैपिटल सिटी रहा, लेकिन नियर अबाउट 1000 बीच में कहीं कहीं गैप हुआ है। अब जैसे मुगल पीरियड के टाइम भी हमेशा दिल्ली नहीं रहा ये कैपिटल सिटी, लेकिन बीच में गैप के बाद ये रहा है, बराबर रहा है। तो इस तरह से नियर अबाउट 1000 ईयर्स ये दिल्ली जो है ओल्ड दिल्ली ये रहा है, कैपिटल सिटी के नाम से रहा है। द ग्रेटेस्ट वाज द कैपिटल बिल्ट बाय द शाहजहां, कॉल्ड शाहजहानाबाद। इसी बीच में शाहजहानाबाद को क्रिएट किया था शाहजहां ने, और फिर कंस्ट्रक्शन जिसको कि 1639 में स्टार्ट किया था। सूफी कल्चर फ्लोरिश, इसी बाद में दरगाह, खानकाह और ईदगाह सब बनाए गए, और सूफी कल्चर आया था, जिसको सूफीज़्म बोलते हैं, और जिसको हम बोलते हैं, हम लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है, हम बोलते हैं उसे संत, यानी कि जिसमें गुरु नानक भी आए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए, और बहुत सारे, और इधर हिंदू कम्युनिटी में भी मीराबाई आई थी। उसके बाद फिर जो भी बड़े बड़े थे, जिसको भक्ति आंदोलन हम बोलते हैं, भक्ति आंदोलन, वही सूफीज़्म उसी को कहते हैं। तो उस वक्त में ये भी स्टार्ट हुआ। दिल्ली कॉलेज को फिर ये कर दिया गया, अबंडन कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिया, और यही नहीं किया गया, जामा मस्जिद जो शाहजहां के जरिया बनाई गई थी, उसमें भी 5 साल तक इन लोगों ने पाबंदी लगा दी थी नमाज पढ़ने की, ब्रिटिश यानी कॉलोनियल रूलर्स ने। उसके बाद फिर वाइसराय लिटिन, ये इन्होंने ग्रैंड दरबार को किया था 1911 ईस्वी में, जिसमें किंग जॉर्ज V को इनवाइट किया गया था, वो आने वाले थे, और उसी में बहुत सारा डेवलपमेंट भी भारत में किया गया था। तो इस तरह से इस लेसन में जो हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट में यही है। एडवर्ड ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर, ये दो बहुत बड़े, ये हमारे ये थे, आर्किटेक्ट्स थे,
जिन्होंने न्यू दिल्ली की प्लानिंग की, न्यू दिल्ली को बनाया, और इस तरह से वायसराय का पैलेस का जो अभी राष्ट्रपति भवन भी है, और फिर बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई गई, बहुत सारी चीज़ों को एबंडन कर दिया गया। नए सिरे से 26 स्क्वायर किलोमीटर पर ये प्लानिंग की गई, और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये छोटा सा लेसन नंबर 6 यहीं पर हमारा एंड होता है ना। और इसके बाद हम लोग इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू गेट बाय हेड ऑल द क्वेश्चन इंक्लूडिंग द एमसीक्यू, इंक्लूडिंग द एमसीक्यू। और हवेली वगैरह का तो है ही है, हम देखेंगे कि किस तरह से ओल्ड दिल्ली में, वर्ल्ड सिटी में हवेली थी उस ज़माने में, और बाद में हवेली का फिर ये हुआ, तो उसको भी देख लेंगे उससे हम लोग क्वेश्चन से कि व्हाट हैपन विद द हवेलीज, क्या हुआ हवेली का। तो मोटे तौर पर ये देखना है कि हवेली को भी में जब सब मिल करके रहते थे, और बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हवेली में सिंगल फैमिली इंग्लिश फैमिली रहने लगी, और उसका भी स्ट्रक्चर इन्होंने बदल दिया। इस तरह से हमारे पास में ये लेसन का एंड होता है, और फिर एमसीक्यूज हैं हमारे पास में, and there are I think 2 types of questions here also. There are 4 questions of short answer and 2, 4, 6, और 6 क्वेश्चन जो हमारे पास है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। ये बहुत ही बेहतर है कि हम लोग पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, और इसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में जो कल या डे आफ्टर टुमारो हम शुरू करेंगे, वो हमारे पास में 3 लेसन होगा ज्योग्राफी का, और 6 लेसन फिर होंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस के, जो काफ़ी अहम तो हैं लेकिन छोटे लेसन हैं, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो ये इसके बाद हमारा फिर सिलेबस हाफ ईयरली का एंड होता है।